بریک کے بعد خوشامدید۔ اسلام آباد میں گیس لیکیج سے خوفناک دھماکہ، شادی والے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ دھماکے سے دولہا دلہن اور دولہے کی والدہ سمیت 8 افراد کی جان چلی گئی، 11 زخمی ہوئے۔ دولہے کے چچا نے بتایا گزشتہ روز بارات گجرات گئی، 1:30 بجے شب واپس آئے، صبح قیامت ٹوٹ پڑی۔ دھماکے سے 4 گھر شدید متاثر ہوئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کسی قسم کا دھماکہ خیز مواد نہیں ملا۔ رپورٹ کر رہے ہیں جہانگیر خان۔ اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں افسوسناک واقعہ، مرنے والوں میں دلہا دلہن اور ساس اور نندے شامل ہیں۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ 4 گھر زمین بوس ہو گئے۔ دھماکہ گیس لیکیج کے باعث پیش آیا۔ دلہا کے چچا نے بتایا کہ دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا ہے۔ بہن کی بیٹی فوت ہو گئی، ایک میری سکی بھتیجی دی بیٹی فوت ہو گئی، کافی مطلب 7 ساڈے گھر تو میری ساری فیملی اندر تھی، تو اچانک ہی صبح 7 بجے کے قریب دھماکہ ہوا۔ اہل علاقہ نے بتایا کہ دھماکے کی آواز سنتے ہی جائے وقوع پر پہنچے تو پورا گھر منہدم ہو چکا تھا۔ ایک بڑے بلاسٹ سے میں اٹھا ہوں تو مطلب ایک خوف چھا گیا۔ پتہ چلا کہ گیس لیکیج تھی کوئی۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے پیمس ہسپتال کا دورہ کیا۔ کسی قسم کا کوئی ایکسپلوسو، کسی قسم کی کوئی اور چیز، کوئی ٹریسز کسی چیز کے بالکل نہیں ملے۔ جائے حادثہ پر گیس دھماکے میں مرنے والے افراد کے لیے دعا کرائی گئی، جس میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین جاوید الطاف اور ساتھی رپورٹرز زینب علی اور علی ملک کے ساتھ جہانگیر خان، ARY نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں دھماکہ بظاہر گیس لیکیج سے ہوا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ مکمل۔ ذرائع نے بتایا خوفناک دھماکے سے 3 گھر مکمل زمین بوس ہو گئے۔ دھماکہ صبح 7:19 پر ہوا۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں 7:37 پر پہنچ گئیں۔ گلی تنگ ہونے کے سبب مشینری لے جانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ بیشتر افراد ملبے تلے دبنے اور جھلسنے سے جان سے گئے۔ جائے وقوع سے گیس پائپ لائن اور کنیکشنز کے سیمپل جمع کر لیے گئے۔ عین شاہدین اور متاثرہ افراد کے بیانات لیے گئے۔ علاقے کی گیس اور بجلی عارضی طور پر منقطع کر دی گئی۔ گیس کس جگہ جمع ہوئی، آگ لگنے کا سبب کیا تھا، مزید تحقیقات ضلعی انتظامیہ، پولیس، فورنزک ٹیمیں، گیس کمپنی مل کر کریں گی۔ اسلام آباد کے شادی والے گھر میں گیس لیکیج دھماکے سے 8 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مرنے والے افراد کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ مزید بات کرتے ہیں نمائندہ ARY نیوز فرح ربانی سے۔ فرح بتائیے گا۔ بالکل، آج صبح G7 میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس میں سے جو 6 افراد تھے وہ تو ایک ہی گھر کے تھے، جس میں دلہا دلہن، دلہے کی والدہ اور قریبی رشتہ دار تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو 7 والا گھر تھا اس میں بھی 2 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ان کے ریلیٹیو ہمارے ساتھ ایک موجود ہے۔ یہ بہت ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے جس میں جو ہے 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں، ملبے کے نیچے آئے ہیں۔ یہ انسیڈنٹ جو سٹارٹ ہوا ہے یہ صاف یہ تھا کہ گیس کے لیکیج کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ بہت ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، بلکہ 2 گھروں کا نقصان ہوا ہے۔ اگر بات کریں تو یہ پوری جو کالونی ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ اداس ہیں، وہ اشکبار ہیں۔ یہاں پر جب ڈیڈ باڈیز لائی گئی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے تو پورا اہل علاقہ جو ہے وہ روتا ہوا ہمیں دکھائی دیا، اور سب ایک ہی بات کر رہے تھے کہ خدارا مینٹیننس کا بھی خیال رکھا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھروں میں بھی احتیاط کی جائے کہ اس قسم کے ناخوشگوار واقعات نہ ہو سکیں۔ ان گھروں کو بھی سیل کر دیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک مکمل تحقیقات نہیں ہو جاتی تب تک جو ہے ان گھروں کو ڈی سیل نہیں کیا جائے گا۔ گھر تو وہاں پہ اب کچھ بچے ہی نہیں ہے، صرف ملبے کا ڈھیر بچا ہے وہاں پر۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق ہنگاموں میں اب تک 114 اہلکار مارے گئے ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی نے سیکورٹی فورسز کے جاں بحق اہلکاروں کی تازہ فہرست شائع کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مرنے والوں میں پولیس، پاسداران انقلاب اور نیم فوجی اہلکار شامل ہیں۔ ایران میں انٹرنیٹ بدستور بند ہے۔ کئی صوبوں میں موبائل سروس بھی تعطل کا شکار ہے۔ ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے کہا کہ حکومت مظاہرین کے مطالبات سنے گی اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن فسادیوں کو معاشرہ تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صدر پیزشکیان نے کہا لوگوں کو تشویش ہے، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ان کی تشویش دور کرنی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے اور امریکہ ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں آزادی کے لیے ایسی تحریک پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ امریکی صدر ٹرمپ اس سے پہلے بھی مختلف بیانات میں کہہ چکے ہیں ایران میں جاری احتجاج میں شریک عوام کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔
ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका और इसराइल हमारा हदफ होंगे। ईरानी स्पीकर ने कहा, किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में अमेरिका और इसराइली अहदाफ पर हमला जायज तस्वुर होगा। मोहम्मद बाकिर कालेबाफ ने वाज़ेह किया कि ईरान इसराइल और अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा, जिसके लिए ईरान को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकेगा। उन्होंने कहा, मुजाहिरीन के रूप में गैर मुल्की तरबियत याफ्ता एजेंट पुरतशद्दुद कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फिर ईरानी मज़ाहिम की हिमायत का ऐलान कर दिया। काबीना से खिताब में कहा कि ईरान में जारी हंगामों पर गहरी नजर है। ईरान में आज़ादी के लिए मुजाहरे फैल गए हैं। पूरी दुनिया ईरानी शहरियों की बेमिसाल हिम्मत पर हैरान है। ईरान में मोसाद का नेटवर्क गैर मुअस्सर करने के लिए इंटरनेट बंद किया गया। ईरानी सहाफ़ी जॉन हुसैन ने प्रोग्राम सवाल ये है में बताया कि ईरान में पुलिस अहलकारों को मनसूबाबंदी से टारगेट करके कत्ल किया जा रहा है। ईरान में इतने बड़े मुजाहरे नहीं हुए जो दिखाए जा रहे हैं। जुमेरात और जुमे के मुकाबले अब ईरान में सूरत हाल बेहतर है। आज का जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल करने के लिए इंटरनेट को ब्लैकआउट करना बहुत जरूरी था। लोकल ईरानी एप्स चल रही हैं, लोकल इंटरनेट ईरान का बिल्कुल है, यहाँ पे ईरानी एप्स काम कर रही हैं। 27 लोगों का जनाजा इस वक्त इस्फहान में पढ़ाया जा रहा है। 100 से ज्यादा पुलिस वालों को यहाँ पे कत्ल कर दिया गया है। जहां तक प्रोटेस्ट की बात रही तो प्रोटेस्ट की जो पिक्चर दिखाई जा रही है दैट इज नॉट द रियल पिक्चर जो ईरान में है। बिल्कुल प्रोटेस्ट हो रहे थे, जेन्युइन थे और बिल्कुल बड़े भी, वो जेन्युइनली बड़े, लेकिन इस हद तक नहीं बड़े इस हद तक दिखाया जा रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स तेहरान के अंदर रिकॉर्डेड 3000 है और आज कोई प्रोटेस्ट मुझे नजर नहीं आया तेहरान के अंदर। मैं नारमक में, सादताबाद में, पासदरान में, डिफरेंट इलाकों में गया हूं, मुझे कोई प्रोटेस्ट नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम कहते हैं कि गुज़श्ता शब से इतवार की दोपहर तक मुल्क में अमन सुकून की फिजा बरकरार रही। तेहरान और दीगर बड़े शहरों में किसी किस्म की बदअमनी या इंतशार देखने में नहीं आया। दहशत गर्दी, बैरूनी मुदाखलत के मुस्तनद शवाहिद के बायस इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की गई। बाशऊर और समझदार ईरानी अवाम दुश्मनों की साजिशों से आगाह हैं। ईरानी कौम साबित कदमी के साथ मुश्किल मरहले से बाहिफाजत निकलने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को सोमालिया का गैर मुतनाज़ और अटूट अंग करार दिया है। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान इसराइल के सोमालिया पर इक़दामात की सख्त मज़म्मत करता है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइल की कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी है। strongly condemn the illegal and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia and subsequent unwarranted and highly provocative visit of its foreign minister through Somaliland. And the Somaliland region remains an integral, inseparable and inalienable part of Somalia. Pakistan also voiced its full support for the brotherly Somalia and condemned Israel's actions during the UN Security Council briefing on the issue. नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की जद्दा में अहम मुलाकातें। OIC के गैर मामूली इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, इस्लामी मुल्कों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने पर बात हुई। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ के लिए OIC प्लेटफॉर्म पर करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात की। इस दौरान तिजारत, तालीम के शोबे में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात में इसहाक डार ने इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने की सख्त मजम्मत की। मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आतिफ से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। कराची के बाग़ जना में PTI का जलसा न हो सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने नुमाइश चुरंगी पर कारकुनान से मुख्तसर खिताब किया, जिसके बाद वज़ीर आला KP वापस रवाना हो गए और कारकुनान मुंतशिर हो गए। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी रश की वजह से जलसागाह नहीं गए और नुमाइश पर ही खिताब किया। इससे कबल सोहेल अफरीदी ने काफिले के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया। सिंध हुकूमत ने रुकावटें डाली, अवाम ने रुकावटें हटाकर जलसा कामयाब बनाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का नुमाइश चौरंगी पर खिताब, कहा, पंजाब में हमारे साथ बुरा सलूक हुआ, सिंध हुकूमत ने भी अच्छा सलूक नहीं किया। जमहूरियत के दावेदार जमहूरियत पसंद नहीं निकले।
सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी अजरक की बेहरमती की, अवाम माफ नहीं करेंगे। रास्ता रोक कर सिंध हुकूमत ने फस्तायत दिखाई जो हमेशा याद रहेगी। अजरक और सिंधी टोपी की बेहरमती जो सिंध हुकूमत ने की है, आप लोग भी उनको कभी माफ नहीं करना। इन लोगों ने सिर्फ सिंधी रवायात नहीं, पाकिस्तान का आईन भी मिलाबेट कर दिया है। हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे हकूक सर्व करे। जिस तरह हम पर पुलिस गर्दी की है, जिस तरह हमारे रोड बंद किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाग़ जिन्ना कराची क्यों नहीं पहुंचे? इसकी वजह यह है कि बाग़ जिन्ना कराची में गिनती के लोग हैं। मामले खसूसी वज़ीर आला सिंध अली राशिद की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू, कहा अब वज़ीर आला KP मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं ताकि लोगों की मिन्नतें करके बाग़ जिन्ना लाएं और अपनी इज्जत बचाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अफनानुल्लाह ने कहा कि बाग़ जिन्ना को इतनी आराम से भरा नहीं जा सकता, इसके लिए मनसूबा बंदी की जाती है। अब ये मुद्दा किसी और के सर डालना चाहते हैं। इनको मिसगाइड करके केपी के सीएम को लाया गया कि यहाँ लाखों का मजमा है। इस ताखीर की वजह कि वो सीएम केपी अभी तक वहां पहुंचे क्यों नहीं, इसलिए नहीं पहुंचे हैं कि बाग़ जिन्ना में गिनती के लोग हैं और ये अब डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं, मोबिलाइज करने की कोशिशें कर रहे हैं, किसी तरह इस जलसे को कामयाब नहीं तो एटलीस्ट इतना फेल नहीं हो कि इनकी बेइज्जती हो। तो दोपहर 2 बजे का इन्विटेशन था, शाम गुजर गई, आपके जो लीडरशिप है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो तक पहुंचे नहीं वहां। अब ये डिफरेंट इलाकों में जाके लोगों को लाने की मिन्नतें कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इनकी इज्जत बच जाए। अगर आपने बाग़ जिन्ना को भरना है तो वो इतनी आराम से नहीं भरा जाएगा। आपको इसके लिए पहले एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आपको लोगों को मोबिलाइज करना होता है। आप छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग जलसे करते हैं, उधर से लोग मोबिलाइज करते हैं, फिर आप बाग़ जिन्ना भरते हैं। ये इधर से यहाँ से उठ के उधर चले गए, उन्होंने कोई तैयारी नहीं की भी, अब वो बाग़ जिन्ना भर नहीं रहा, तो अब ये मुद्दा जो है किसी के सर और डालना चाह रहे हैं। हर तरह से जो है फैसिलिटेट किया गया है हमेशा, और उसके बावजूद जो है ये पूरे नहीं होते। कराची में अगर इन्होंने जलसा कामयाब करना था तो इनको तैयारी करनी चाहिए थी। अब वो इनका जलसा कामयाब हो नहीं रहा। आप देखें ना, 10 अगर अभी तक नहीं शुरू हुआ तो अब क्या जलसा शुरू होगा। कराची में बाग़ जिन्ना के करीब PTI कारकुनों के पथराव से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुश्तइल अफराद ने TV चैनल्स की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजा का नोटिस। ज़िया लंजा ने कहा SSP ईस्ट को हिदायत की शरपसंद अनासिर को आड़े हाथों लिया जाए, किसी को अमन अमान की हालात सबूताज करने नहीं देंगे। जदीद मॉनिटरिंग निजाम से निशानदही करके शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस कड़ी निगरानी और मॉनिटरिंग को मज़ीद सख्त करे। हमने अमन चाहा है और हम अमन की कदरदान हैं। पाकिस्तान की तरसलात ज़र तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई तरसलात ज़र का एक और रिकॉर्ड कायम हो गया। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद ने बताया, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता माह के दौरान 3 अरब 7 करोड़ डॉलर से ज्यादा की तरसलात ज़र भेजी। तरसलात ज़र दिसंबर 2024 के मुकाबले में 17% ज्यादा रही। रवा माली साल में मजमूई तरसलात ज़र 41 अरब डॉलर से ऊपर जाने की तवक्को है। कतर में पहली बार पाकिस्तानी फलों की बड़ी नुमाइश। अलोकरा में ये नुमाइश 18 जनवरी तक जारी रहेगी। पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद आमिर और दीगर ने शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं AIY के नुमाइंदे अशरफ सिद्दीकी। एक दूसरा चैप्टर शुरू हुआ है कतर के अंदर, पाकिस्तानी फ्रूट्स एक्सपोर्ट्स वगैरह और उसकी इंट्रोडक्शन के लिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी जो एक्सपोर्ट्स है उसको इंक्रीज करने के एक मिशन उन्होंने सौंपा हुआ। हमने पाकिस्तान के बहुत सारे आइटम लेके आए हैं, उसमें हमारे पास खानपुर का रेड ब्लड साइट्रस जो पूरी दुनिया पर राज करने वाला साइट्रस है, वो हमने साइट्रस फेस्टिवल के लिए कतर में लाया है। Very pleased to be here in Wakra the first time and I congratulate our Pakistani friends. I tasted their orange, they're extremely delicious. सफीर पाकिस्तान मोहम्मद आमिर और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो सुफरा हजरात हैं वो उसमें मौजूद। पेशावर में 9 मई वाकयात की वीडियोस की तस्दीक मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई वाकयात में सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर वीडियोस और ऑडियोज का तज्जिया किया।
पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी भी कंफर्म हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। चंद वीडियोस में लोगो और टेक्स्ट के इजाफे की निशानदही की गई। तमाम तज्जिया सिर्फ विजुअल मवाद तक महदूद रखा गया है। KMC डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मुबैना मेगा करप्शन। नैब ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब को नोटिस भेज दिया। नैब ने मेयर कराची से 2020 से 2025 के दौरान डेवलपमेंट वर्क्स की तफसीलात मांगी हैं। नैब का कहना है कि KMC डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मेगा करप्शन की शिकायत मौसूल हुई है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है जो तफसीलात मांगी गई हैं वो जमा कराएंगे। नोटिस में जो इल्जाम लगाया गया है ऐसा कुछ नहीं। इतने अरसे बाद शहर में काम शुरू हुआ। अरबों रुपए के तरक्याती काम शुरू कराने का खैर मकदम किए जाने के बजाय नैब का नोटिस भेज दिया गया। हम सड़कें बनाते हैं, इदारे खोद कर चले जाते हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शिकवा। कहा टाउन गैस वालों से अरबों रुपए लेकर सड़क नहीं बनाते, कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, ये गोलमाल है। पानी चोरी रोकने के लिए ट्राइब्यूनल बना दिया है। चीफ जस्टिस चंद दिन में इफ्तिताह करेंगे। 2026 तरक्याती कामों की तकमील का साल है। ली मार्केट का काम 8 से 3 महीने के अंदर मुकम्मल करके देंगे। ओल्ड सिटी एरिया की बहाली 30 जून से पहले मुकम्मल करके देंगे। यहाँ के इलाके के लोगों को रखवाली करनी होगी। हम सड़क बनाएं और फिर कोई इदारा आके खोद के चले। टाउन वालों से मिलो, फिर सवाल पूछो। आप गैस कंपनी से अरबों करोड़ रुपए कटिंग की मद में ले लें। सड़क अभी तक नहीं बनी, 1.5 साल हो जाने के बाद भी कहीं ना कहीं गोलमाल है। अरे टैक्सेस आपके पास है और आप कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। A4 ऑगमेंटेशन, जुमे के रोज काम वापस स्टार्ट हो चुका है। 71 अरब खर्च करने जा रहे हैं पानी की लाइन्स की रिप्लेसमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए। कराची वालों से जीने का हक छीन लिया गया। शहरियों को पानी, बिजली, सड़कें और अपना हक चाहिए। अमीर जमाते इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 17 साल में कराची को क्या दिया। ट्रैफिक सिग्नल्स और सड़कों पर लेन मार्किंग नहीं है। हमें भारी भरकम चालान मंजूर नहीं। सिंध हुकूमत ई चालान पर नजरसानी करे। ये भारी भरकम ई चालान हमें मंजूर नहीं है। तो ई चालान को रिवाइज करना पड़ेगा। 400 सिग्नल कराची की जरूरत है। ये सिग्नल क्यों नहीं लगते? 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आपने कराची को क्या दिया? कराची को सर्कुलर रेलवे की जरूरत है। 15,000 बसों की जरूरत है। सड़कें टूटी हुई हैं, गटर बह रहे हैं। ये पूरे कराची को उसका हक चाहिए। नए सूबों के लिए तहरीक शुरू कर रहे हैं। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं पंजाब इतना बड़ा सूबा है, सिर्फ एक हाई कोर्ट है। सूबों के नाम तब्दील नहीं करना चाहते। मसाइल का हल ज्यादा सूबों में है। सिंध में हुकूमत है तो एक की जगह अपने 4 वजीर आला बना लो, मसाइल तो हल करो। बलूचिस्तान में एक से दूसरे शहर जाने के लिए 1000 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। सूबों पर MQM और दीगर जमातों ने हमारी हिमायत की है। मुल्क में एक तहरीक शुरू करनी है जिसमें हमने मुल्क में ज्यादा सूबे होने चाहिए। वो सूबे इसलिए होने चाहिए, यहाँ पे एक हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट। पार्टी ने फैसला किया कि ये सूबों के नाम जो है वो बिल्कुल तब्दील नहीं करेंगे। बलूचिस्तान जो है वो कोई 1000 किलोमीटर दूर बनते हैं एक शहर से दूसरा शहर। मसाइल का हल ज्यादा सूबों की शक्ल में होगा। अगर आपके पास सिंध में हुकूमत है तो बराए मेहरबानी आप एक वजीर आला की जगह अपने 3 वजीर आला बना लें, अपने कोई और वजीर आला बना लो, पर लोगों के मसाइल तो हल कर लो। आज मुझे MQM की हिमायत हासिल हुई, बहुत सारे दोस्त इसमें हमारी हिमायत शामिल कर रहे हैं। सारा कुछ मेरे पास ही आ जाए, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों के मसाइल के हल के लिए नए सूबे बनाएं। खबर है कराची से, जहां पे ट्रेलर की टक्कर से 2 हादसात हुए, 2 अफराद जहां बहक हो गए। नॉर्दर्न बाईपास मवाज मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ। ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जहां बहक हो गया। पुलिस का बताना है कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रैवल को तहवील में ले लिया गया है। साइट एरिया वलेका के करीब ट्रेलर की टक्कर से एक शख्स जहां बहक हुआ। जहां बहक शख्स की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नौजवानों को IT में बैनुल-अक़वामी मयार की तरबियत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म से IT माहिर अरफा करीम रंधावा के वालिदैन और अरफा करीम फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ताबिंदा इस्लाम ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को खित्ते में IT का मरकज बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशां है। अरफा करीम फाउंडेशन की हुकूमती सतह पर हर मुमकिन मदद यकीनी बनाएंगे।
वज़ीर आज़म ने कम उम्र में IIT के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर अरफा करीम को खिराज तहसीन पेश किया। मौसम सरमा में हरिपुर की मशहूर सौगात रेड ब्लड माल्टे के चर्चे। बड़ी तादाद में सयाहों ने रेड ब्लड माल्टा खाने के लिए खानपुर का रुख कर लिया। आजम शाह की रिपोर्ट। मौसम सरमा में तहसील खानपुर की मशहूर सौगात रेड ब्लड माल्टा है, जो अपने खास जायके और लज्जत में मुल्क भर में मुनफरिद मकाम रखता है। रेड ब्लड माल्टों की हकीकी लज्जत महसूस करने के लिए सयाहों ने माल्टे के बागात का रुख कर लिया है। रेड ब्लड कैसा माल्टा है जो कि टेस्ट में एक मुनफरिद जायका रखता है। यहाँ पर जो रेड ब्लड है इसका टेस्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हरिपुर का खास तोहफा है यहाँ के ऑरेंज, और बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़े महंगे मिलते हैं। खानपुर के माल्टों की कई अकसाम हैं, जिनमें रेड ब्लड, सैकरी, मौसमी और फ्रूटर नुमायां हैं। पानी की अदम फराहमी और हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस माल्टों की पैदावार में बतदरीज कमी वाक़या हो रही है, जिससे काश्तकारों के रोजगार मुतासर होने के इम्कानात हैं। 5 किस्म का माल्टा है, जिसमें शैकरी आता है, मौसमी आता है, फ्रूटर आता है, रेड ब्लड आता है। हमारे इधर बेसिकली मसला पानी का है। माल्टे की नश्व व नमा और पैदावारी सलाहियत में इजाफे के लिए हुकूमत को तरजीही और ठोस बुनियादों पर काम करना चाहिए, ताकि माल्टे के बागात को मजीद सुकड़ने से बचाया जा सके। सैयद आजम शाह, ARY न्यूज़, हरीपुर। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की जानिब से रेलवे ग्राउंड कराची में इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। 125 जोड़े साल जीने मरने की कस्में खाएंगे। मजीद बता रहे हैं चांद नवाब। में मौजूद हूँ रेलवे ग्राउंड में, जहाँ पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की जानिब से इज्तिमाई शादी की मुनक्किद की जा रही है। सिंध भर से यहाँ पर दूल्हा दुल्हन अपनी फैमिली के साथ आए और इज्तिमाई शादी होंगी, और यहाँ पर पंडित जो है वो इनसे डोरे लेगा हिंदू रस्मात के तहत, और दूल्हा दुल्हन जो है शादी के बंधन में बन जाएंगे। यहाँ पर जो है जिस तरह हर कोई यहाँ पे वलीमे का इंतजाम करता है, खाने का भी इंतजाम किया गया है। दूल्हा दुल्हन को जो है जहेज भी दिया जाएगा। हिंदू कौंसिल की जानिब से खुशियाँ मनाई जा रही हैं, और सबका यही कहना है कि पाकिस्तान में हमें तमाम रस्मात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी है। जी, इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।